Do you want to solve probability dice problems within a minute, or you are facing difficulty to solve probability dice problems? You are in the right place. Watch this video till the end. You will get the exact idea to solve probability dice problems with my mirror triangle trick. I will give you exact blueprint of this mirror triangle trick so that you will be able to solve 2 dice probability question in very easy way. And believe me, most of the question you will not required a copy or paper and pen. You will get directly give the answer. Okay. Hello, namaskar. My name is Mayank Gurjar. I am lifelong learner. I have 8+ years of teaching experience, Master of Engineering from SGS ITS Indore. I am Autodesk certified trainer for AutoCAD software, creator of AutoCAD wale Mayank sir. I love to do innovation in teaching and learning, and I am also crazy for cooking different cuisine and photography. So I start with the topic. This is probability. So generally the probability is favorable number of outcome divided by total number of possible outcome. So in all the questions we will start with this probability formula, and I will cover the dice problem. Start with first single dice problems and 2 dice problems. So watch this video till the end. So we start the dice problem, start with the single dice. So in the case of single dice, I have possible outcomes. It is starts with 1, then next 2, 3, 4, 5, 6. एक डाइस को मैं रोल करता हूं तो मुझे 1 से लेकर 6 तक पॉसिबल आउटकम मिलते हैं. तो चलिए इसको सीखते हैं एक एग्जांपल के साथ. क्वेश्चन है, राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम व्हेन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इज डन. सो फर्स्ट केस इज अ डाई इज रोल्ड. तो अ डाई इज रोल्ड. इन द केस ऑफ सिंगल डाइस आई हैव टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम दैट इज 6. ओके. एंड द सेकंड, the 2 dice are rolled simultaneously. In the case of 2 dice we have different number of possible outcome. So how we will find out? In the case of 1 dice we have total number of outcome is 6, and in the case of 2 dice, so we just square this, we will get the total number of outcome that is 36. In the case of 3 dice you will get 6 to the power cube. This will be 216. So you will get the 3 dice problem. Total number of possible outcome is 6 to the power cube 216. Okay, next चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये क्वेश्चन है, अ डाई इज रोल्ड एट रैंडम, राइट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स. देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को यह समझना है कि केस कौन सा है. तो केस है यहां पर सिंगल डाई. अ डाई बोला है मतलब सिंगल डाई हो गया, ठीक है. 1 डाई. सेकंड बोला है यहां पर राइट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. प्लीज listen carefully that what is the asking in the question. Write the number of favorable outcome. There is not the question of probability. They are asking about just number of favorable outcome. So the first case is getting a number of less than 5. So less than 5 in the case of 1 die, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. क्वेश्चन बोल रहा है यहां पर getting a number less than 5. less than 5 में हमारे पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4. So favorable number of outcome is 4 and total number of outcome is 6. So we will get the probability 2/3. यदि ये probability पूछेगा तो हमें 2/3 करना है, और पूछता है getting a number less than 5 तो आपको यहां पर काउंट करना है 1, 2, 3, 4. तो आंसर विल बी 4. सो याद रखिएगा ये मिस्टेक होगी हमसे. तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको आपको 2 बार पढ़ना है. इट इज रिकमेंडेड टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस. नेक्स्ट इज गेटिंग अ प्राइम नंबर.
तो प्राइम नंबर के लिए यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 में से प्राइम नंबर जो खुद से डिविजिबल हो, तो यहां पर हम देख सकते हैं जो खुद से डिविजिबल है वो क्या है, यहां पर मैं मार्क कर देता हूं। जो खुद से डिविजिबल हो रहे हैं ये हो रहा है 1 2 3 और यहां पर 5। ये 4 केसेस ऐसे हैं जो कि खुद से डिविजिबल होंगे। तो यहां पर गेटिंग अ प्राइम नंबर, यदि फेवरेबल आउटकम लिखना है तो फेवरेबल आउटकम अगेन द आंसर इज 4। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि पूछा क्या है क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, अ डाई इज रोल्ड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। देखिए यहां पर अगेन क्वेश्चन है सिंगल डाई का और पूछा है प्रोबेबिलिटी। तो जैसे ही प्रोबेबिलिटी पूछते हैं तो हमें फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम चाहिए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम चाहिए। तो इन द केस ऑफ डाई 1 2 3 4 5 6, ये मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा रहा हूं, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं और पूरा एक एक आउटकम को लिख रहा हूं। एट द एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट ऑफ इट कि कैसे आप इन सारे क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अ डाई इज रोल्ड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज, यहां पर जो 2 है ये 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 से लेके 6 तक आउटकम है, 2 आ सकता है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट इज 2/6। ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए अ डाई इज रोल्ड एट रैंडम और पूछा जा रहा है 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2 फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है, तो ये 2 एक ही बार आ रहा है यहां पर, तो ये होगा 1। तो यहां पर क्या आने वाला है, 1/6। मैं पूछता हूं 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो भी आपको क्या लिखना है, 1/6। 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो सारे जो आउटकम हैं ये एक बार आएंगे, एक बार आ सकते हैं, तो सारे आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, चाहे वो 1 की पूछे, 2 की पूछे, 3 की पूछे और सो ऑन 6 की पूछे। नेक्स्ट, अ डाई इज रोल्ड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4। ओके, 4 नहीं आना चाहिए, बाकी सब आ जाए। तो बाकी सब कितने, 1 2 3 4 5, तो 4 नहीं आएगा, बाकी सब आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 4 इज 5/6। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है अगेन, अ डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 5। देखिए यहां पर पूछा जा रहा है कि गेटिंग द नंबर 5, अगेन जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, तो 5 के लिए पूछा है, तो ठीक है, एक डाइस के क्वेश्चन में एक 5 आ सकता है, दैट इज पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम इज 1 एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 6। तो आंसर इज 1/6। नेक्स्ट, एन ऑड नंबर। अब यहां पर देखते हैं 1 से 6 तक ऑड नंबर कौन कौन से हैं। 1 से 6 तक जो ऑड नंबर हैं वो हैं 1 3 और 5, ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर कितने हो गए टोटल, 1 2 3, तो 3 है हमारे पास, तो मैं लिख सकता हूं कि 3 फेवरेबल आउटकम हो गया और टोटल आउटकम हो गया 6। तो आंसर विल बी 1/2। अच्छा, यहां पर यदि ये पूछ लेता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो चलिए इवन नंबर को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इवन नंबर कौन कौन से हो रहे हैं यहां पर, 2 4 और 6, तो ये भी 3 है। तो यहां पर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी फॉर इवन नंबर इज अगेन 3/6, दैट इज 1/2। तो याद रखिएगा, इन द केस ऑफ डाइज, यहां पर जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें इवन नंबर और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट नहीं करना है। जस्ट रिमेंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज हाफ एंड ऑड नंबर इज अगेन हाफ। इन द केस ऑफ 2 डाइज इट विल बी सेम। चलिए नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ है अ नंबर ऑफ लाइंग बिटवीन 3 एंड 6। अ नंबर ऑफ लाइंग बिटवीन 3 एंड 6 मतलब 3 से 6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो 3 और 6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, यहां 3 से स्टार्ट, 3 और 6 के बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, 4 एंड 5। तो 4 एंड 5 मतलब 2 पॉसिबल आउटकम हो गए, 2 पॉसिबल आउटकम, तो फेवरेबल नंबर ऑफ केस 2 एंड डिवाइड बाय 6, सो वी विल गेट 1/3। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन ग्रेटर देन 2। देखिए ये इवन का केस हम सॉल्व कर चुके हैं,
है ना। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 मैं इसको फिर से एक बार लिख देता हूं ताकि यहां पर क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट केस इवन नंबर, इवन कौन कौन से हैं यहां पर, इवन हो गया 2 4 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 6 एंड फेवरेबल इज 3। 2 4 6 तीन केस है हमारे पास फेवरेबल, तो हमने यहां पर 3/6 कर लिया, दैट इज 1/2। 50% रहता है, इवन पूछे ऑड पूछे हमें 50%, 1/2 लिखना है। इसमें जो क्वेश्चन दिया है सेकंड, दैट इज ग्रेटर देन 2। चलिए ग्रेटर देन 2 देख लेते हैं। ग्रेटर देन 2 के लिए हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 पॉसिबल आउटकम हो गए, तो हम यहां पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी दैट इज 4/6, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। तो इन दिस वे वी कैन concrete our concept for the single dice. Move to the next question. अब आ गए हम 2 डाइस पे। देखिए 2 डाइस के लिए मैं आपको बता देता हूं, मैं पूरे इसके आउटकम्स लिखूंगा यहां पर, आपको ध्यान से देखना है आउटकम कैसे लिखते हैं। प्लीज मेक इट फुल स्क्रीन। 2 डाइस, ठीक है। देखिए 2 डाइस के केस में मिनिमम कितना आ सकता है, 1 आ सकता है क्या, नहीं आएगा, है ना। 2 डाइस के केस है, 2 डाइस का केस है, उसमें मिनिमम कितना आएगा, 2 आएगा। एक डाइस पे सिंगल और दूसरे डाइस पे सिंगल, तो ये मिनिमम कंडीशन हो गई कि 2 तो आएगा ही आएगा। मैक्सिमम कितना आ सकता है, मैक्सिमम आएगा यहां पर 12। एक पे 6 आया, दूसरे पे भी 6 आया, तो यहां पर कितना हो जाएगा 12। इसके इन बिटवीन मेरे पास 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 8 9 10 11 और 12। तो ये हमारे पास आउटकम्स है 2 से लेके 12 तक जो आएंगे, ठीक है। चलिए ये कैसे कैसे आते हैं, हम इसके सेट लिखते हैं। 2 आने के लिए हमें चाहिए 1,1, ये हो सकता है। 3 के लिए लिख रहा हूं मैं 1,2 या फिर 2,1। 4 के लिए लिख रहा हूं मैं 1,3, 2,2, 3,1। हमें इधर से 1 बढ़ाना है और 1 घटाना है। 5 के लिए लिखूंगा तो कैसे लिखेंगे, 1,4, 2,3, 3,2 और यहां पर 4,1, ठीक है जी। 6 के लिए लिखते हैं, 6 के लिए लिखेंगे 1,5, यहां पर लिखेंगे 2,4, फिर यहां पर लिखेंगे 3,3, यहां पर लिखेंगे 4,2 और यहां पर लिखेंगे 5,1। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 7 के लिए। 7 के लिए लिखेंगे तो यहां पर लिख देंगे 1,6, 2,5, 3,4, फिर यहां पर लिखेंगे 4,3, 5,2 और 6,1, ठीक है जी। तो यहां से ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप सारे आउटकम्स लिखना है 2 डाइस के केस में। क्यों लिखना है देखिए मैं बताऊंगा आपको। अब यहां पर 8 के लिए लिखता हूं यदि मैं, तो यहां पर 1,7 लिखने का मन करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा डाइस के केस में 7 नहीं आएगा, मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6 आ सकता है। तो यहां पर इससे बचने के लिए मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं अपन कि 12 के केस में कितना आ सकता है मैक्सिमम, 6,6। एक डाइस पे 6 आएगा, दूसरे पे भी 6। 11 के केस में क्या हो सकता है, 11 के केस में हो सकता है कि 5,6 और एक और क्या हो सकता है 6,5। 10 के केस में क्या हो सकता है, 10 के केस में हो जाएगा यहां पर 5, स्टार्ट करते हैं अपन 4 से, है ना। 4,6 मैक्सिमम 6 आएगा, यहां पर फिर 5,5 आएगा और 5,5 के बाद यहां पर क्या आ जाएगा 6,4। सो इन दिस वे यहां पर मिस्टेक्स नहीं होंगी, आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। चलिए 8 के लिए लिखता हूं मैं, यहां 8 के लिए 1,7 नहीं होगा तो क्या होगा 2,6। 2,6 के बाद यहां पर 3,5, 3,5 नेक्स्ट 4,4, 5,3 और 6,2, ठीक है। 9 के लिए लिखता हूं मैं, 9 के लिए क्या हो जाएगा यहां पर 3,6,
4,5, 5,4 एंड द नेक्स्ट इज 6,3। यहां से हम ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मैंने पॉसिबल आउटकम लिख लिए हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे अपन इसका कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन निकालने के लिए देखिए, ये जो 2 डाइस का केस है, मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे हो जाएंगे, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये जो 36 आउटकम है ये मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये 36 आउटकम को हमें कैसे यूज करना है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। तो यहां से सबसे पहले हमें समझना है कि 2 लाने के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम यदि सम की बात करें तो कितना हो रहा है, 1। तो मैं यहां पर इसके एक सम की लिस्ट बना लेता हूं। ठीक है, सम की लिस्ट बना लेता हूं। ये देखिए, यहां पर अपन बनाएंगे सम की लिस्ट। ये जो है यहां पर सम की लिस्ट आ रही है 1, 3 के लिए आ रही है 2, 4 के लिए आ रही है 3, 5 के लिए आ रही है 4, 6 के लिए 5, 7 के लिए 6, देन यहां पर लिखता हूं 5, 6 इस 5, 4, 3, 2 एंड द लास्ट फॉर द 12 इज 1। तो ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम पर्टिकुलर सम के लिए कितना आ रहा है। ठीक है जी, तो यहां पर ये हमें रिकॉर्ड करके रखना है। अब देखिए, यहां से मैं सीखता क्या हूं, मेरी लर्निंग क्या होती है। मेरी लर्निंग ये है कि यदि 5 के लिए पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5, तो 5 के लिए मुझे आउटकम लिखने पड़ेंगे 1,4, 2,3, 3,2, 4,1, और फिर मैं काउंट करूंगा कि ये काउंट करने के लिए 1, 2, 3, 4, और फिर मैं आंसर दे पाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/36 होगी। तो यहां से हमको सीखने को यह मिल रहा है कि कुछ नहीं करना है, ये यहां तक आप देखिए पैटर्न कैसा है उसको ऑब्जर्व करना है। पूछता है 2 के लिए प्रोबेबिलिटी बताइए तो मैं बोल दूंगा 1/36। पूछेगा 3 के लिए प्रोबेबिलिटी बताइए तो मैं बोल दूंगा 2/36। फिर पूछेगा 6 के लिए बताइए तो मैं बोल दूंगा यहां से 5/36। तो ऐसे मैं यहां पर प्रोबेबिलिटी को डायरेक्टली लिख सकता हूं, मुझे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं एक पैटर्न को ट्रायंगल के फॉर्म में लिखता हूं, जिसको मैं बोलता हूं मिरर ट्रायंगल ट्रिक। देखिए कैसे लिखते हैं अपन। मैं यहीं से डेटा को कैप्चर करूंगा। ठीक है, मिनिमम क्या आ सकता है, मिनिमम आ सकता है 2, 3, फिर नेक्स्ट 4, 5, 6 एंड द 7। ठीक, इसके बाद मैं डाउन कर रहा हूं 8, 9, 10, 11, 12। द रीजन फॉर राइटिंग इन दिस पैटर्न इज बिकॉज वी आर गेटिंग आफ्टर 6 5, 4, 3, 2, 1. So we are just lowering in the same pattern. That is why I called this mirror triangle trick. Okay? चलिए, तो ये हमारा स्लोप जाता है 7 तक ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे। अब इसमें जो हमें सम मिल रहा है, मैं उसको एक काम करता हूं, अंदर के साइड लिख लेता हूं। 2 कितनी बार आ सकता है, 1 बार, तो मैंने यहां पर 1 लिख दिया। 2, 3, 4, 5, 7 आने के लिए 6। मैक्सिमम आउटकम कितने मिल रहे थे हमें, केसेस कितने मिल रहे थे, 6। फिर 8 के लिए अगेन इट इज रिपीटिंग 4, 3, 2, 12 कितनी बार आ सकता है 2 डाइस के केस में, 1 बार आ सकता है, तो दिट इज 1। तो यहां से इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे यदि आप, तो मैक्सिमम हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है गेटिंग द सम 7 इज 6/36। ओके, तो ये गेम को हमको ध्यान रखना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहां पर, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय 36। ये बन गया जी ब्लूप्रिंट। इस ब्लूप्रिंट में आपको क्वेश्चन को समझना है, वैल्यूज को रखना है, एंड यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 यदि मेरे से कोई पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, तो मुझे डायरेक्टली यहां से समझ में आ रहा है 5 मतलब 4/36। मेरे से पूछते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो मुझे लिखना है 6/36। मेरे से कोई पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9,
तो मैं 8/36 नहीं करूंगा, इसीलिए मैंने ये ग्राफ को नीचे बना दिया है। तो याद रखिएगा यहां पर 7 तक ठीक है चलेगा, आप एक एक माइनस कर रहे हैं, बट इसके बाद आपको एक एक माइनस नहीं करना है। 12 के लिए 11/36 नहीं होगी, है ना। तो हमें पता है कि 12 कितनी बार आ सकता है, एक बार, 6,6। तो यहां से हम आप अपनी मेमोरी को रिवाइज करेंगे, दैट इज 12 से पीछे जाना है, 1 से लेके वापस 5 तक, ठीक है। तो 12 के लिए कितना हो जाता है 1/36, 11 के लिए 2/36। तो ऐसे हम यहां पर समझना चाहेंगे। यदि मेरे से कोई पूछता है 9 की प्रोबेबिलिटी, तो हमें दिमाग में रखना है कि 7 टॉप पे है, 7 में से 1 माइनस करता हूं 6/36 हो जाता है, 7 में +2 इधर 9 आ रहा है, और इधर से 6 को 2 बार माइनस करना है, दैट इज 4/36। क्लियर? आई होप यू विल गेट द आइडिया। चलिए, तो इसके बेसिस पे मैं अब क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं आपको, ठीक है जी। तो क्वेश्चन है 2 डाइज, 1 व्हाइट एंड 1 रेड। अब देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, एक 1 व्हाइट बोल दिया, एक 1 रेड बोल दिया, है ना, कुछ भी चलेगा। 2 डाइज है, आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 6। ठीक है, देखिए अब 2 डाइज के क्वेश्चन में अगेन मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने में हमें क्या क्या चीजें क्लियर हो रही है। पहली चीज 2 डाइस का क्वेश्चन है, सेकंड चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम पूछा है, ठीक है। कई बार वो आपको कंफ्यूज करेगा, बोलेगा प्रोडक्ट 6, और वहां पर हम गलती कर देते हैं। तो ये गलती ना हो इसलिए हमें क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है और देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सम बोला है 6, तो ये देखिए 6, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/36, तो ये हमारा आंसर हो गया 5/36। इसमें नेक्स्ट बोला है 2 डिफरेंट डिजिट्स। 2 डिफरेंट डिजिट्स का मतलब क्या होगा कि 2 डिफरेंट डिजिट आए, ठीक है। 2 डिफरेंट डिजिट्स कैसे आ सकते हैं, देखिए 2 डिफरेंट डिजिट्स का सबसे आसान तरीका सॉल्व करने का यहां पर कि मैं लिख लेता हूं कि 2 सेम डिजिट कैसे आ सकते हैं। तो 2 सेम डिजिट्स कैसे आएंगे, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6, ठीक है, यही आएंगे सेम डिजिट। तो 36 में से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये केस हमें हटाने हैं जी, तो हमें मिल जाएगा कि 2 डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है। तो 36 में से ये 6 हटा दिया हमने, तो बचे कितने 30, तो 30/36 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये माइनस कर दूंगा 6 केस, तो दिस विल बी 30/36। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट 3rd वाला बोलता है अ डिफरेंस ऑफ 1, डिफरेंस ऑफ 1, डिफरेंस ऑफ 1 कैसे निकालेंगे। देखिए डिफरेंस ऑफ 1 का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं यहां पर कि 1, 2, फिर 2, 3, तो ये कैसे निकालते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहां पर, डिफरेंस ऑफ 1, तो क्या क्या हो सकता है 1,2, फिर होता है 2,3, फिर होता है 3,4, फिर होता है 4,5 और फिर होता है 5,6, ये हो सकता है। और इनका रिपीट भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है कि 1,2 और 2,1, 2,3, 3,2, 3,4 तो यहां पर 4,3, 4,5 तो यहां पर 5,4, 5,6 तो यहां पर 6,5। तो देखिए जी यहां पर 2, 4, 6, 8, 10 टोटल 10 केस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 केस जो हो रहे हैं ये नेक्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10/36 दैट इज 10/36 क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, दिस इज 10 एंड द टोटल इज 36, तो दैट इज 10/36। यू कैन कैंसिल इट, ओके। चलिए तो ये हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एज अ प्रोडक्ट। देखिए 2 बार पढ़ना है, अब यहां पर सम नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, गेटिंग 6 एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो 6 एज अ प्रोडक्ट कैसे आ सकता है, 6 को लाने के लिए आपको चाहिए 1,6, 2,3, 3,2 और
6,1 ऐसे ही आएगा 6। यदि इन दोनों का आपस में मैं प्रोडक्ट करूंगा तो 6 आ रहा है, 2,3, 3,2, 6, तो ये हमारे पास आउटकम कितने हो गए 4। तो यहां पर गेटिंग 6 एज अ प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 4/36। ये हो गया आंसर। गलती क्या होगी? गलती ये होगी कि मुझे सम की आदत है, गेटिंग सम 6 एज सम 6, तो मैं क्या लगा के आने वाला हूं 5/36 और मेरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पूछा क्या है, प्रोडक्ट पूछा है या सम पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गेटिंग सम लेस देन और इक्वल टू 3, बिल्कुल सही। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। अब आएगा हमारा मिरर ट्रायंगल का यूज कैसे करना है। देखिए 3 का पूछ रहा है या उससे कम, तो 3 के लिए हमारे पास कितना है पॉसिबल आउटकम 2, और उससे कम तो 2 के लिए कितना है 1, दोनों को जोड़ देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर 3/36। क्लियर है? देखिए, या फिर आपको ऐसा सबसेट बनाना पड़ता, ये मिरर ट्रायंगल से मैं विद इन सेकंड सॉल्व कर पा रहा हूं। कैसे बनाना पड़ता? 3 के लिए और 3 से कम मतलब 2 के लिए, तो 3 के लिए कैसे बनाते आप 1,2, फिर यहां पर बनाते 2,1, 2 के लिए क्या बनाते 1,1, फिर काउंट करते 1 2 3 एंड द आंसर विल बी 3/36। ऐसा करना पड़ता, पर हमारे पास मिरर ट्रायंगल है तो हम इजीली यहां पर इसको फाइंड आउट करके सम करके वी विल गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गेटिंग सम लेस देन और इक्वल टू 10। देखिए अगेन हम ये मेथड को अप्लाई करेंगे। गेटिंग सम लेस देन और इक्वल टू 10, तो देखिए अब इस केस में यदि आप यहां पर पॉसिबल आउटकम बनाते 10 के लिए और 10 से कम के लिए, तो आपको 10 का बनाना है 9, 8, 7, 6, 5, इतने सारे आपको आउटकम बनाने पड़ते। बट यहां पर मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं 10 और उससे कम के लिए। तो मुझे क्या करना है 10 के लिए कितना है 3, 9 के लिए 4, इन सबको बस ऐड करना है, तो ऐड कर लेता हूं। 10 के लिए 3, 9 के लिए 4 प्लस 5 प्लस 6 अगेन प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, कितना हो गया ये 3 और 4 7, 5 12, 6 18, 4 22, 22 5 27, 28 29 30, 31 32 और 33, 33 आ गया जी। तो ये यहां पर मैं लिख सकता हूं 33/36, ये मेरा आंसर हो गया। या फिर हम रिवर्स चलेंगे। कैसे रिवर्स चलेंगे? वो बोल रहा है 10 या उससे कम, तो 10 या उससे कम की जगह हम क्या करेंगे 11 और 12 का निकाल लेंगे और उसको 36 में से माइनस कर देंगे, है ना। तो वो यही वाली बात हो जाएगी। तो कितना हो रहा है यहां पर 11 12 का 3 हो रहा है, 36 में से 3 माइनस किया 33, तो दैट विल बी 33/36। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं, अपना माइंड ब्रेन कैसे काम करेगा, ठीक है। तो वो ब्रेन ऐसे ही काम करता है, सबसे पहले बोलेगा आउटकम लिख लीजिए, सेकंड बोलेगा कि क्या बोला है 10 और उससे कम, तो हमने चालू हो जाते हैं 10 और उससे कम का लिखने के लिए। बट हमें ध्यान से सोचना है कि और क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं, तो मैंने वो पॉसिबल वे को यहां पर देखा और वहां से मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गेटिंग अ डबलेट, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये डबलेट क्या होता है? जब डाइस पर सेम नंबर हो तो उसे हम डबलेट कहते हैं। तो डबलेट कौन कौन से आ सकते हैं यहां पर? डबलेट आ सकते हैं 1 का आ सकता है, 2 का आ सकता है, 3, 4, 5 और 6, इनके डबलेट आ सकते हैं। इसको बोलते हैं डबलेट। तो ये कई बार पूछा जाता है डबलेट का केस, ठीक है। तो डबलेट के केस में आपको यहां पर लिखना है 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 केस हैं जो आ सकते हैं। तो पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे यहां पर? दैट इज 6/36, प्रोबेबिलिटी 6/36। ओके, गेटिंग अ डबलेट। अब देखिए यहां पर ट्विस्ट कैसा कर सकता है, वो ट्विस्ट कर सकता है गेटिंग अ डबलेट ऑफ इवन नंबर। तो गेटिंग अ डबलेट ऑफ इवन नंबर मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 2, 4 और 6। तो गेटिंग अ डबलेट ऑफ इवन नंबर में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 2 3, 3 केस, तो 3/36। ठीक है जी। तो आपको समझना है कि वहां पर डबलेट सिंपल पूछा है या फिर उसके साथ कुछ कंडीशंस दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गेटिंग अ सम ऑफ 8, ठीक है जी, सम पूछा है और 8 का पूछा है, तो देखिए यहां पर 8 है, तो 8 के लिए मैं 7/36 नहीं करूंगा क्योंकि मुझे याद है 7 टॉप पर आता है, उसके बाद मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है, तो 8 के लिए क्या हो जाएगा जी 5/36, तो यहां पर यह आंसर हो जाएगा इसका 5/36 इन द केस ऑफ सम 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गेटिंग सम विच इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, अब 5 से क्या क्या डिविजिबल हो सकता है, तो यहां पर हमें देखते हैं 5 से डिविजिबल क्या क्या है, तो 5 से डिविजिबल 5 और 10, ठीक है, दो केस मिल रहे हैं यहां पर, एक ये 5 हो गया और एक ये 10 हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं, यहां पर एक 4 और 10 के करस्पॉन्डिंग 3, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं 4 और 3, तो आंसर क्या हो जाएगा जी 7/36। देखिए आपको सैंपल स्पेस लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है और आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटिंग सम डिविजिबल बाय 5, ये हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, गेटिंग सम ऑफ एटलीस्ट 11। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म को हम ध्यान से समझते हैं, यहां पर सम बोला है और एटलीस्ट बोला है, तो सम हो गया 11 के लिए, ठीक है, और पूछा है एटलीस्ट 11, है ना, एटलीस्ट 11 का मतलब क्या कि 11 और उससे ज्यादा, तो उससे ज्यादा क्या हो सकता है 12, तो यहां पर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 1, तो यहां पर 2 + 1 कितना हो जाएगा जी 3/36, तो यहां से हम गेटिंग अ सम ऑफ एटलीस्ट 11 निकाल सकते हैं। अच्छा ये पूछ लेता है यदि गेटिंग अ सम ऑफ एटमोस्ट 11, एटमोस्ट 11 मतलब मैक्सिमम 11 तक जा सकता है, ठीक है, तो मैक्सिमम 11 तक मतलब हमको 2 से लेके 11 तक के सब काउंट करना है टोटल आउटकम और फिर डिवाइड बाय 36, या फिर क्या करेंगे 12 का निकाल लेंगे, 1 - 12 के लिए 1/36, ओके, तो याद रखिएगा एटलीस्ट और एटमोस्ट में कंडीशंस कैसे अप्लाई करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, ठीक है जी, 3 के मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं, यहां पर देखते हैं, 3 के मल्टीपल हैं, ये देखिए 3 के मल्टीपल हो गए, ये 3 हो गया, 6, 9 और 12, ठीक है जी, तो इन चारों के करस्पॉन्डिंग को जोड़ देते हैं, 2 + 5 ये 7, 7 के बाद 4 मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है जी, लिख देता हूं मैं 2 + 5 + 4 और +1, तो ये कितना हो गया 7, 7 4 11 और 1 12, तो ये आंसर क्या हो जाएगा जी 12/36। तो देखिए ये ब्लूप्रिंट कितना काम आ रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 बोल दिया है, एटलीस्ट 10 मतलब 10 तो रहे गई, उसके अलावा क्या क्या हो सकता है 11 और 12, तो यहां पर देखते हैं हम 10 11 12, तो 3 + 2 + 1 कितना हो गया 3 और 2 5 और 1 6, तो यहां से हम निकाल सकते हैं दैट विल बी 6/36। गेटिंग एन इवन नंबर एज द सम, गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर कौन कौन से हैं यहां पर हम देखते हैं, हम मार्क कर लेंगे इवन नंबर कौन कौन से हैं जी, देखिए 2 4 6 8 10 एंड 12, अब इसके करस्पॉन्डिंग आउटकम कौन कौन से हैं लिख लेता हूं मैं यहां पर, कौन कौन से हो रहे हैं 1 + 3 + 5 + 5 + 3 और +1, तो कितना हो गया ये 4 5 4 9 9 5 14 15 16 17 18, तो दैट विल बी 18/36। अच्छा इस केस में यदि वो पूछ लेता कि ऑड नंबर के लिए बताइए, तो ऑड नंबर के लिए भी यही आएगा 18/36, तो याद रखिएगा चाहे क्वेश्चन सिंगल डाइस का है चाहे क्वेश्चन 2 डाइस का है, आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 50%, दैट इज 1/2, देयर इज नो नीड टू सॉल्व इट,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गेटिंग अ प्राइम नंबर एज द सम। ठीक है जी, प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से डिविजिबल होता है। तो 2 डाइस के केस में हम पहले फाइंड आउट करते हैं कि प्राइम नंबर है कौन से जी। ठीक है, प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? यहां पर 2 हो जाएगा, टू हो गया है ना, इसके बाद 3 हो गया, इसके बाद 5 हो गया, इसके बाद 7 हो गया, 7 के बाद यहां पर 11 हो गया। ठीक है, ये प्राइम नंबर है जो कि खुद से डिविजिबल होंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग लिख लेते हैं हम, इसके करस्पॉन्डिंग लिख लेता हूं मैं। यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा? 3 7 7 और 6 13, 13 और 2 15। तो आंसर विल बी 15/36. So in this way we can easily calculate the probability 2 dice questions. Move to the next question. Getting a doublet of even number. देखिए ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, getting a doublet of even number। यहां पर आप देख सकते हैं doublet of even number, 3 केस हो रहे हैं मेरे पास। तो ये 3 केस के लिए क्या हो जाएगा आंसर? दैट इज 3/36। डबलेट मतलब जो डबल आ रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाई। ठीक है जी, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। 2 डाइज है हमारे पास और 2 डाइज में वो बोल रहा है कि पहली जो डाइज है उस पर 2 का मल्टीपल आना चाहिए और सेकंड जो डाई है उस पर 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 2 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा? 2 4 6 और 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा यहां पर? 3 6। बस, क्योंकि एक सिंगल डाई पे 6 के ऊपर कुछ भी नहीं आ सकता। तो देखिए आउटकम बना लेते हैं यहां पर हम। ये हो जाएगा 2,3। यहां पर लिख सकते हैं हम 4 3,4। इसको ऐसे लिखिए जी, 3,2। यहां पर लिखेंगे हम 3,4 और यहां पर लिखेंगे हम 3,6। यहां पर क्या लिख सकते हैं आप? यहां पे लिख सकते हैं 6,2, यहां पर लिख सकते हैं 6,4 और यहां पर लिख सकते हैं 6,6। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 6 केस हो गए। अच्छा, और ये आपस में भी इंटरचेंज हो सकते हैं। तो आपस में इंटरचेंज, ये 3,2 और 2,3, ये टोटल केस कितने हो जाएंगे? 2। तो ऐसे करते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 12 केस होना चाहिए। बट 12 केस में ये 6,6 और 6,6 ये एक ही केस माना जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 1 माइनस कर देता हूं मैं, तो मेरे पास क्या बच रहा है? 11। तो देखिए ये यही गलती होती है, यहां पर हम लिख लेते हैं और इसको डबल कर देते हैं, बट 6,6 रिप्रेजेंट्स 1 आउटकम। ओके, it will remain the same. So the possible probability, possible outcome will be 11 and the total number of outcome is 36. So answer will be 11/36. Okay, I hope you will get the idea of how can we solve 2 dice problem in easy way and even without using the paper and pen for most of the cases. ओके जी, यहां पर आपको और कैसे क्वेश्चंस वो वहां से डिराइव कर सकता है कि यहां पर बताइए एटलीस्ट 5, एट मोस्ट 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 4 और 9। तो आपको 4 का निकालना है, दैट इज 3/36, 9 का निकालना है, दैट इज 4/36 और दोनों को ऐड कर देना है क्योंकि उसने कंजंक्शन लगा दिया है। और तो इस टाइप के भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, और 7 तक तो आपको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट सब्ट्रैक्ट 1। मैं पूछता हूं 7 आने की प्रोबेबिलिटी 6/36। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।